I started this I am Dr. Lakshman Malkunje. I completed my MDS in maxillofacial surgery in 2012. I am practicing in maxillofacial surgery in a vast field as like I am operating the facial trauma, I am operating the facial tumors, also I am operating for the dental implants. For the missing teeth, I place the dental implant. I have started my journey in the practice since the 2012, but in the dental implantology, I started my journey from since 2013. It's like a 10 to 12-year-old practice. Then I learned about the basal implantology. The unique concept in the implantology is we provide the teeth in the 72 hours. That's why I started my clinic by name of the 72 hours, and I'm providing all the dental treatments, including the root canals, caps, or each and every dental treatment I want to give the patient within the 72 hours. That is my motto behind a 72-hour clinic. I started this concept since 10 years, but I started this clinic since the last 2 years. So I recognize that so much of dental treatment I can provide within the 72 hours by getting the new instruments, by getting the all team under one roof, as like all the dental specialists like root canal specialist, prosthodontics, oral surgeons, periodontists. So uniquely I want to give treatment for my patient within the 72 hours. That's the main motive behind this clinic. There are lots of dental treatment which can be completed within 72 hours, but many times patients are afraid of the dental office visit. They always think we have to go for a dental treatment at least 3 to 6 months, 5 to 7 times, or for any dental implant treatment, I at least needed 3 to 6 months or 9 months. But by the technique of the basal implantology or 72 hours technique, we are providing the fixed teeth within the 3 days. That is in the 72 hours. That is the beauty of this clinic. Whenever there is a tooth loss, there are two types of implant. One is the conventional method, and another is a basal implant. What we are doing in the conventional implantology, we put the implant in the bone and wait for the 3 to 4 months. Then, after 4 months, we again open that place and place the crown. So naturally, it takes 3 to 5 months period. And in basal implantology, we use the basal bone, which is the hardest bone and which is infection-free bone. So that's why we can provide teeth within the 72 hours to our patient to chew the food within 72 hours. And also, it gives the aesthetic look also. That's the basal implantology. If you have natural teeth, अगर आपके पास नेचुरल दांत है तो आप उसको बचाना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है, ना कि इम्प्लांट में. बट इफ यू डोंट हैव नेचुरल टूथ, देन देयर इज नो ऑप्शन. सो योर ओनली ऑप्शन इज द इम्प्लांटोलॉजी. एंड व्हाई आई एम आस्किंग अबाउट द बेसिक इम्प्लांटोलॉजी कि बेसिक इम्प्लांटोलॉजी जो आप जब करेंगे तब किसी भी बोन कंडीशन में आपको यूज कर सकते हैं. मतलब आप बहुत लंबा वाला बोन जो कि इन्फेक्शन फ्री बोन है वो हम यूज करेंगे, डीप बोन जो बोलते हैं हम उसको. So each and every candidate is eligible for this case, जिसमें हम कॉन्वेंशनल इम्प्लांटेज नहीं कर सकते. दूसरे इम्प्लांटेज में बोन ग्राफ्टिंग करनी है, अदर सर्जरीज करनी है, सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्टिंग करनी है. ऐसे कौन सा भी पेशेंट हो जिसमें हम ये सारी चीजें नहीं चाहते कि सर्जरी करे बार बार, तो उसमें हम बेसल इम्प्लांट यूज करते हैं. बेसल इम्प्लांट में हम ना कोई सर्जरी करते ना कोई बोन ग्राफ्टिंग करते. इसमें ईच एंड एवरी कैंडिडेट इज पॉसिबल फॉर द बेसल इम्प्लांटोलॉजी टू गेट द टीथ विद इन द 72 आवर. जब आप इम्प्लांट कौन सा सजेस्ट करने या फिर कौन सा यूज करना है या कौन सा महंगा है या कौन सा सस्ता है, अगर ऐसा सोचोगे तो इम्प्लांट इज नॉट पॉसिबल. बिकॉज वी आर जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप अपने दांतों के ऊपर कर रहे हैं, और दांत ही है जहां से अपना मतलब
सब कुछ चालू हो जाता है। जैसे कि हम जो कोई भी खाना खाएंगे मुंह में, वही अपने पेट में जाएगा, वही अपनों को उसको पचन हो जाएगा और उससे ही अपनी हेल्थ बन जाएगी। सो डोंट थिंक अबाउट कि पैसे क्या लगने वाले, या बट योर इम्प्लांट मस्ट बी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथोराइज किया हुआ होना चाहिए। इम्प्लांट की क्वालिटी टाइटेनियम की होनी चाहिए, तो उस तरीके के इम्प्लांट में आना जाना चाहिए। द मेन थिंग इज अबाउट नॉट अबाउट द इम्प्लांट मटेरियल, इस मेन थिंग इज इम्प्लांट हम कहाँ प्लेस करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। दैट इज अपना खुद का बोन, हम कौन सा बोन यूज कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ या बट द इम्प्लांट डिजाइन मस्ट बी कंपेरेबल विद दैट बोन, that it must be included. So after my 13-year experience, I choose multiple implants and I found that this one implant is very beneficial for my patient, and that implant I am using since last 10 years. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी डेंटल क्लिनिक में अगर पेशेंट जाता है तो उसको सबसे पहले लगता है कि दर्द का, क्योंकि उसको फियर होता है कि कितना पेन होगा। तो हम सबसे पहले पेशेंट से बात करते, उसको काउंसिल करते कि आप पर क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, कैसे होने वाला है और क्या नहीं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसमें कौन सा इंजेक्शन देना है, किस टाइप टेक्निक से देना है, और उस टेक्निक से देने के बाद उसको क्या फायदा होगा। तो हम पेन वहाँ उसी से कम कर देते। अगेन इम्प्लांटोलॉजी में जो हम यूज करते बेसिक इम्प्लांटोलॉजी, उसमें हम कोई ना कोई फ्लैप देते, कोई सर्जरी करके ना उसे ओपन करते, तो पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेन भी कम होता है। इस सारे टेक्नोलॉजी को यूज कर सारे एक्सपर्टाइज को यूज कर हम उसको मिनिमम पेन के साथ मैक्सिमम ट्रीटमेंट पहुंचाने की कोशिश करते। कोई भी ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के लिए हमें एक चाहिए होता है एक्सपर्टाइज। नंबर 2 हमें चाहिए होती है कि ग्रुप प्रैक्टिस, कि मतलब हर काम एक बंदा नहीं कर सकता है। और उसके बाद टेक्नोलॉजी ने जो मशीनरीज है, तो हमने क्या किया है कि हमें पता चला है कि कोई भी ट्रीटमेंट करने के लिए 72 आवर में हो सकता है। जैसे कि हमने रूट कैनाल चालू कर दिया आज, तो आज भी चालू कर दिया तो 2 दिन में उसके क्राउन के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। मैं जिस चीज में एक्सपर्टाइज हूँ, जो कि बेजल इम्प्लांट, उसमें भी यही है कि 72 आवर्स में हम वो इम्प्लांट में पेशेंट को दांत चबाने लायक दे देते। वो कैसे पॉसिबल है कि हम जो भी बोन यूज करते हैं, जो भी इम्प्लांट यूज करते हैं टेक्नोलॉजी वाइज, जो भी मशीन यूज करते हैं, उसके कारण क्या होता है कि पेशेंट के एकदम हार्ड बोन में वो चला जाता है जहाँ के वो इन्फेक्शन नहीं होता है, और वहां पे चबाने के बाद वो बोन ग्रो करता है, ना कि वो खराब होता है। सो बाय दिस टेक्नोलॉजी adaptation we can provide the teeth to the patient within 72 hours. When we differentiate it about the natural teeth and the artificial teeth by implant, then always keep in mind that जो नेचुरल टीथ होता है उसको बचाना, उसको सेव करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें जो चीविंग कैपेसिटी होती है वो इम्प्लांट में नहीं आ सकती। मतलब 100% नहीं आ सकती, लेकिन 99% आ सकती है। बट नेचुरल टूथ को सेव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट व्हेन देयर इज नो ऑप्शन, कि मतलब आपका दांत ही नहीं है, अभी आपको कुछ नहीं है, तब देन वी विल गो फॉर द इम्प्लांट। इम्प्लांट का फायदा क्या है कि उसमें बाद में कोई केरीज वगैरह होने की चांस नहीं, क्योंकि इट इज आर्टिफिशियल मेटल। नेचुरल टीथ में कैसे केरीज होने की संभावना है, तो उसको सफाई वगैरह से रखना पड़ता है। इम्प्लांट में कोई केरीज होने की संभावना नहीं है, क्योंकि टूटने की संभावना नहीं है। दैट इज द मेन डिफरेंस इन बिटवीन दैट। मेरे सारे पेशेंट को मेरा यही कहना होता है कि जो भी आपके नेचुरल टीथ है उसको आप सेव करना चाहिए। देन हाउ टू सेव इट? जस्ट ब्रश 2 टाइम्स इन मॉर्निंग और रात को सोने से पहले, क्योंकि इसी टाइम पर सबसे ज्यादा जर्म्स मुंह के अंदर रहते हैं। अगर आप नेचुरल टूथ को सेव कर पाए बाय जस्ट ब्रशिंग 2 टाइम्स और रिंसिंग आफ्टर एवरी मील, देन दैट इज मोर बेटर। और सेकेंड थिंग, मुंह के अंदर अगर कभी भी मतलब केरीज हो या पायरिया हो, तो ये डिसीज होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं मुंह के अंदर से हम पेट में जाता है, तो वी गेट दैट इन्फेक्शन थ्रू आवर फूड टू द आवर स्टमक। सो ऑलवेज विजिट योर डेंटिस्ट 6 मंथ, आफ्टर एवरी 6 मंथ, सो यू कैन जज। मतलब जो हम बोलते हैं ना कि मतलब समय से पहले ही अगर हम उससे रोक दे तो वो बीमारी ज्यादा बढ़ेगी नहीं। ये क्वेश्चन मुझसे अच्छा है कि मेरे पेशेंट ही इसका जवाब दे। बट मतलब 2-3 पेशेंट ऐसे हैं ना कि ऐसा आपको जिंदगी में याद रहते हैं। जैसे एक माता जी थी, वो बेचारी 20 साल से परेशान थी कि वो खाना ही नहीं खा पा रही थी। शी विजिटेड मेनी डेंटल क्लिनिक्स कि मुझे कुछ करके दीजिए, डेंचर करके दीजिए, इम्प्लांट करके दीजिए, मुझे खाना खाना है।
जब वो उसको डेंचर बिठाती थी ना तो वो हिल जाता था और खाना चबा नहीं पाती थी। और जब इम्प्लांट करना किसी को पूछते थे तो वो बोलते थे बोन नहीं है, बोन नहीं है, कि आपको बहुत ही एट्रोफी है वगैरह। तब उसने खूब समझ के मेरा इंटरव्यू किसी देख लिया होगा तो फिर मेरे पास आ गए। जब मैंने उसके दांत बिठा दिए और वो खाना खाने लगी तो एकदम से रोने लगी। और मतलब हमारे यहाँ पे रिवाज होता है कि हम बड़ों के पैर पड़ते हैं, तो मेरे पैर पड़ने लगे। दैट टाइम आई रियलाइज कि मैं मतलब कुछ तो है इस साइंस में जो मैं बहुत लोगों को मदद मतलब इससे फायदा पहुंचा सकता हूँ। लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशन कभी हम पेशेंट देखना पड़ता है कि क्या उसकी मेडिकल कंडीशन है, क्या उसका बोन लेवल है, या सब कुछ देखकर हो सकता है। सो मुझे लगता है कि मेरे साइंस से बहुत ही लोगों को फायदा होने वाला है और होते ही रह रहा है। कितने ही अजीब मतलब कितने ही बीमार पेशेंट ना हो, कितने ही बोन कम वाले पेशेंट हो, उन सबको उनका फायदा होता है। कुछ लोग डेंचर से खूब अच्छा खाना खा पाते हैं, कभी कभी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से भी हो जाता है। पर डेंचर में क्या है कि को बोन से सपोर्ट कम मिलता है। तो बोन मैक्सिमम द मेन ड्रॉबैक क्या है डेंचर का, कि डेंचर जब हिलता है और उससे बोन लॉस होता है। और जैसे जैसे धीरे धीरे बोन लॉस होता है तो मतलब आज अगर हमने डेंचर बिठा दिया तो हो सकता है 5-6 महीने फिर ढीला हो जाए, फिर उसको ठीक करना पड़ेगा, फिर 5-6 महीने ढीला हो जाए, और वो रात को निकाल कर रखना पड़ता है हर बार साफ करने के लिए। तो पेशेंट गेटिंग बोर्ड की मतलब वो रोज निकालना है, साफ करना है। अदरवाइज इफ पेशेंट गो विद द डेंचर इज आल्सो गुड, बट मोस्टली ढीला होना और खाना ठीक से ना चब पाना, ये 2 प्रॉब्लम डेंचर के साथ आते हैं। कुछ मिथ्स ऐसे भी है कि डेंटल इम्प्लांट करने के बाद ओरल कैंसर हो जाएगा, जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है। क्योंकि डेंटल इम्प्लांट जो होता है टाइटेनियम से बना होता है और इज हाईली कंपेटेबल मटेरियल विद आवर बॉडी। जब भी हम ऑर्थोपेडिक्स मतलब एक्सीडेंट के बाद भी रॉड डालते हैं वो भी टाइटेनियम पे होते हैं। जो भी चीज होती है मतलब वो ह्यूमन बॉडी को एक्सेप्टेबल है। तो एक बहुत बड़ा मिथ है कि डेंटल इम्प्लांट करने के बाद कैंसर हो जाएगा। कुछ मिथ ऐसे भी है कि एक बार डेंटल इम्प्लांट करने के बाद वो मतलब बार बार खराब हो जाएगा, बार बार करना पड़ेगा, बार बार खराब होगा। सो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उसको प्रैक्टिकली बाय साइंटिफिकली अगर उसको प्लेस करते हैं और उसको फॉलो अप देते हैं डॉक्टर से, तो बहुत लाइफ लॉन्ग टिकते, मतलब लाइफ लॉन्ग वो कभी खराब हो ही नहीं सकते। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली हमारे ऐसा कहा जाता है कि एक बार डेंटल इम्प्लांट करने के बाद पेशेंट की और डॉक्टर की शादी हो जाती है। क्योंकि क्या है कि उसमें मेंटेनेंस है, कभी कभी पेशेंट को ये नहीं पता चलता कि वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है साफ सफाई, तो डॉक्टर देख सकता है। तो एवरी 6 मंथ्स यू हैव टू मतलब चेकअप विद योर डॉक्टर। क्योंकि एक बार अगर खराब हो गया ना तो फिर उसको सुधारने में टाइम लग जाता है। लेकिन अगर खराब होने से पहले हम उसको कुछ बार बार देखते हैं, उसका हाइजीन मेंटेन करते हैं, तो अच्छी बात होती है। इसलिए मुझे तो लगता है कि पेशेंट ने 6-6 महीने आप दिखाना चाहिए फॉर हिज हेल्थ और हर हेल्थ और फॉर मतलब लॉन्गिट्यूड ऑफ हिज इम्प्लांट। नहीं, क्योंकि अगर पेशेंट को दांत ही नहीं है, वो चबा नहीं पा रहा है, तो ऑब्वियसली उसको डेंटल इम्प्लांट करके चबाना ही चाहिए, तभी उसकी नॉर्मल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। तो ऐसा कोई पेशेंट नहीं कि जिसको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको इम्प्लांट नहीं करवाना है। हाँ, देयर आर सम कॉन्ट्राइंडिकेशन, जैसे कि आईवी बिस्फॉस्फोनेट थेरेपी है, रिसेंटली उसको ईएमआई हो चुका है। इस ऐसे पेशेंट में हम उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन उनकी भी कंडीशन हम मेडिकली ठीक करके फिर उसमें डेंटल इम्प्लांट कर सकते हैं। तो कोई ऐसा पेशेंट नहीं है कि जिसमें इम्प्लांट नहीं कर सकते। 72 आवर्स एक डेंटल क्लिनिक हॉस्पिटल है तो एक घर जैसा है। यहाँ पेशेंट फील बेटर करते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट मतलब आप 72 आवर्स से पुणे में, वैसे उसके ब्रांचेस खुलने जैसे जा रहे हैं अभी हम। अब पुणे में है कोई पेशेंट अगर सोलापुर से कोल्हापुर से आता है बाहर गांव से, तो हमारी जो टीम है बैकअप वाली उनसे बात करती है, उनके प्री ऑफ एक्सरेज मंगा लेती है, प्री ऑफ फोटोज मंगा लेती है, प्री ऑफ इन्वेस्टिगेशन करवा लेती है। फिर उनसे वीडियो कॉल कंसल्टेशन का हम बात कर लेते हैं कि आपकी ट्रीटमेंट कब करवानी है, कैसे करवानी है। सारी बात तय होने के बाद पेशेंट को वहां से यहाँ तक आने के लिए हमारी बैकअप टीम गाइड करती है। वहां पे उनको यहाँ पे अकोमोडेशन मिलने के लिए भी गाइड करती है और उसके बाद फॉलोअप लेने के लिए भी गाइड करती है। सो वी एज ए टीम वी आर वर्किंग हियर इन आवर क्लिनिक। जैसे मेरे बैकअप टीम में मेरे कॉल ऑपरेटर से लेकर मेरा जो डॉक्टर है जो सारी इन्वेस्टिगेशन करवा लेता है, उसका पोस्ट ऑप में जो सारे इंस्ट्रक्शन देने या फिर पोस्ट ऑप में कुछ को उसका फॉलोअप लेना है, उसके लिए भी अलग डॉक्टर है। सो वी वर्किंग एज ए टीम। सबसे बड़ा तो हम यहाँ पर कोई भी डेंटल का जो ट्रीटमेंट है वो विद इन 72 आवर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। नो ट्रीट टू फिक्स इट विद इन 72 आवर, ये हमारा एक कंसेप्ट है। तो इसमें जैसे कि कोई इंटरनेशनल क्लाइंट्स हो, जैसे कि वो बाहर से घूमने इंडिया आते हैं, फिर उनको जल्दी जाना होता है,
तो उनके लिए ट्रीटमेंट बहुत सही है। सेम थिंग कि हमारे जैसे पुणे के नियर बाय कोई शहर हो, जैसे कि कोल्हापुर, नागपुर, सोलापुर, वहां से पेशेंट अगर आना चाहता है तो उनको हम 72 आवर्स में उनकी ट्रीटमेंट मतलब कंप्लीट करके देते हैं। वैसे तो मैं नहीं चाहता कि हर पेशेंट मतलब पेशेंट बनकर आए, फिर भी अगर किसी को जरूरत पड़ती है कि ट्रीटमेंट करवाना है तो वो हमारे यहाँ पर आते हैं। जैसे कि मेरी बैकअप वाली टीम है, उनसे कॉल बैक करती है, उनसे इन्वेस्टिगेशन करवाती है, फिर उनका पूरा डाटा मुझसे बात करके हम एक वीडियो कंसल्टेशन रखते हैं, उनका टेलीकम्युनिकेशन जो बोलते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि सर्जरीज की डेट क्या है, फिर उनको यहाँ पे कैसे लाना है, उनका अकोमोडेशन कैसे करना है, फिर यहाँ से उनको फॉलोअप के लिए कैसे बात करनी है। सो ये बाय हैविंग द टीम एंड द टेक्नोलॉजी